PPT visible, Eddie? Yes, sir. Okay, okay. Good afternoon, participants. Now we will discuss about the cultivation technology of this shiitake mushroom. Okay, okay, sir. Okay. Shiitake, known as Lentinula edos, is Japanese wood mushroom, commonly called as shiitake, is most popular mushroom in the Japan, and it is number one largest mushroom cultivated in the world. Last time it was in second position. Unique taste, flavor, and presence of chemical reduce the plasma cholesterol level. This is the share of shiitake production in different countries. Uh, Taiwan is number one, and India is not picking up. But right now, Nagaland people have started in a big way the cultivation of this shiitake mushroom. As far as medicinal properties are concerned, it has got anti-tumor polysaccharides activity and glycoproteins, antiviral nucleic acids, platelet aggregation inhibitive substances, and anti-cholesterol active substances. Lentinol, a bioactive molecule isolated from this shiitake mushroom, is an approved drug in Japan. And lentinol, a polysaccharide found in shiitake, has been shown to be responsible for many of its beneficial effects. Although an injectable form of lentinol is used in some countries as an adjuvant to cancer chemotherapy, but definitive data on shiitake's efficacy as an oral anti-cancer agent are lacking. Shiitake contains 8 essential amino acids in better proportions than soybeans, meat, milk, or eggs, as well as good blend of vitamins and minerals, including vitamin A, B, B12, C, D, and niacin. As far as cultivation of this shiitake mushroom is concerned, generally we follow two types of methods. One is cultivation on wood logs, and second one is cultivation on synthetic logs. And these are some of the trees which are suitable for cultivation of this shiitake mushroom. That is tuna, mango, horn beech, oak, sheep, birch, maple. I mean, those trees with broad leaves, they are suitable for the cultivation of this shiitake mushroom. Coming to log cultivation of wood logs, first step involved is log preparation, then spawn preparation, then spawning logs, and crop management. This is an outdoor activity. Log cultivation is an outdoor activity. Logs with 9 to 18 centimeter diameter and 15 to 20 years old is taken. The time for cutting or lopping tree is December, January, and logs should contain moisture content of 44 to 55%. And if moisture content is less than 20%, then there will be no spawn run, no growth. And naturally, pH of log is 4.5 to 5.5. Now spawning, small holes of 1 into 1 centimeter and 1.5 to 2 centimeter deep are made on the logs, and holes are made at a distance of 20 to 30 centimeter and 6 centimeter between each row. The holes between the two rows are alternate in position, and generally the spawn of wood plug spawn is inserted by cutting out small size pieces, and after spawning seal the holes with paraffin wax. As far as crop management is concerned, keep the inoculated logs in open place where physical conditions are most favorable for mycelial growth. And keep inoculated logs in a flat pile or minimum light exposure, or you can cover the pile with straw or gunny bags. And vegetative growth in logs will be completed in 8 to 12 months. I mean, it will take almost 1 year for spawn run. Our fruit body induction, shock of temperature drops, high humidity and enough light is required. And for fruiting, spray cold water or immerse logs in tank of cold water for 24 hours during summer and for 2 to 3 days during winter. And after giving this cold shock treatment, lean the logs against the spot, maintain high RH, and temperature should be in the range of 50 to 20 degrees centigrade. And mushrooms are harvested up to 3 times, and rest for 3 to 40 days is given, and after water to get again water is given, so cold shock treatment is given to get mushrooms.
Log can be repeated. It can be repeated 3 to 4 times per year, and log will produce crop up to 4 to 6 years. Just first slide is cutting the logs, then making holes with the help of some drill. Distance between hole to hole is 15 to 20 centimeters. And the holes, you can make your own arrangement for the, it is not necessary that you should follow the same pattern. You can make your own pattern. Then inserting spawn, either bead ganway spawn or wood plug spawn, wood chip spawn, and sealing it with paraffin wax. And after inoculation, logs are kept in a leaning position against each other. And in third slide, man is hammering the logs after 1 year. He's actually giving the shock treatment. And after giving shock treatment or cold shock treatment, then mushrooms will start growing. This is if you want to prepare this sawdust one, then in sawdust 78%, wheat one 20%, sucrose 1%, calcium carbonate 1%, water content should be 65%, or you can go for this wood plug spawn by cutting small pieces of wood and maybe spawn on it. These are the spawned logs. After cold shock treatment, then peanuts will start developing, and after within 3 to 4 days, major the shiitake can be harvested. And by this method, once you spawn, you can harvest shiitake up to 6 years. Now these slides are from Nagaland. They are using very thick logs for cultivation of the shiitake. Just see the thickness of this log and quality of this fruit mushroom fruit bodies. This is again from Nagaland. Now, it is not possible to get wood logs every time of desired wood. In that case, we are using the synthetic bed cultivation. Here we are using the sawdust of broadleaf trees for cultivation of shiitake. These are some of the steps. First one is bedding. Bedding means bedding of the sawdust, then supplementation with either wheat bran or rice bran, then filling bags, then autoclaving, and inoculation, then incubation, then bag opening, and then fruiting. These are some of the steps. Now we have developed short technology for cultivation of shiitake. Earlier, it was taking 80 to 90 days for spawn only. Now, with this technology, one can harvest shiitake within 45 to 47 days. Cultivation is carried out on sawdust of selected trees, that means broadleaf trees, with wheat bran 20% and calcium carbonate 1% and calcium sulfate 0.5%. Mix substrate mix thoroughly, and mixed substrate is filled in PP bag with 1.2 to 1.5 kg weight weight. If you fill more than 1.5 kg, then there will be problem of sterilization or autoclaving. Bags are then sterilized in an autoclave at 22 pound pressure, that is 121 degrees centigrade for 90 minutes. And after cooling, grain spawn is inoculated at the rate of 3%, and bags are incubated at 4 hour to 20 hour light dark cycles at 23 to 25 degrees centigrade. And spawn run will be completed within 36 to 40 days. And after bump formation, cold water treatment is given by immersing this spawn run synthetic logs in cold water for 10 to 15 minutes after removing of PP bags. And after giving cold treatment, these blocks are kept in cropping room at a temperature of 22 degrees centigrade with 10 to 12 hours of light is given. And after 2 to 3 days of cold water treatment, small primordia develop, which will mature into full-grown fruit bodies in next 3 to 4 days. This is short duration technology. Here you see that this is wetting of the sawdust.
And this is rough method for testing the moisture content of the sawdust. Just fish the sawdust. If some water droplets ooze out from this fish, then it means moisture content is more than 65%. I mean, water droplets should not ooze out from the sawdust. Then mixing of other ingredients, that is 20% wheat bran or rice bran, 1% calcium carbonate, and 0.5% calcium sulfate. Then mixing thoroughly. Then bag filling. Generally, we use these PP bags for cultivation of the shiitake mushroom. This is just to weigh exact quantity of this wetted substrate in the bag. It should not be more than 1.5 kg. Then after filling bag, insert PP neck on the mouth of the bag and close it with non-absorbent cotton plug. If you don't have this non-absorbent cotton or this PP neck, then you can simply close the mouth with the help of some threads also. This is the autoclaving of bed. This is the loaded view of an autoclave. Here, after autoclaving, bags are inoculated with wheat grain-based span. In this case, it is not possible to do through spanning because bags are filled completely. And here, in this case, it is only possible to do surface spanning. And automatically, the mycelium will colonize the substrate by downward growth of the mushroom mycelium. There are some strains which can be cultivated on wheat straw also. This is the view of the commercial unit of this shiitake farm. They are using the truckloads of these synthetic blocks. Here in the first slide, it is spawn run taking place on the sawdust substrate, and in second slide, it is on wheat straw. This after complete spawn run, there will be bump formation on the bags. Just see in the second slide. If before bump formation, if you give cold shock treatment, then these blocks will break down. But after bump formation, if you dip these blocks in the cold water, then they will remain intact. This is the bump formation stage. Just see the bumps. And at this stage, you can remove the PP bag and simply dip the blocks in cold water. And once you spawn the shiitake, you can harvest shiitake up to 6 months by using these synthetic blocks. And after cold shock treatment, there is when we remove this PP bag, then after coming in contact with the air, this will turn brown in color. This is known as cold hardening stage. And these are the small peanuts coming on these synthetic blocks. Just see the small peanuts. And fruiting temperature range for fruiting is strain dependent. See, some strains require temperature of 15 to 20, some will require 10 to 15, some will require 20 to 25 degrees centigrade. This is the strain used for the short duration cultivation technology of this shiitake mushroom, where you can harvest shiitake within 45 to 47 days. This is OE388. This is another strain of the shiitake that I think it is 356. And here in this case, fruit pods are very thick and attractive. And this strain 327, those people who are doing this commercial cultivation of shiitake, they are using this strain 327. Particularly in the Dehradun, those who are dealing with the shiitake, they are using this strain only. This is another strain of shiitake. Just see this size. And this is a comparison between good slope versus synthetic low cultivation at present short duration technology.
In case of this natural logs, its management is a bit difficult, and only 10 to 15 kg of this shiitake can be harvested from 100 kg of logs, and production period is generally 3 to 8 years, and time for fast harvest is almost 1 year. And synthetic logs, sawdust, sugarcane bagasse, cotton seed hulls, peanut hulls, corn cobs, wheat stuff can be used, and spawn running period it will be 80 to 100 days, and one can harvest shiitake up to 8 months with biological efficiency of 80 to 100%, and management is easy. And present synthetic technology where we are using this sawdust, it will take 45 to 47 days for first harvest, and one can harvest shiitake up to 6 months with the biological efficiency of 110 to 130%, and management is easy. This is another strain of shiitake. This is the view of this DMR shiitake cropping room. Just see the quality fruit bodies are coming. These are the mature fruit bodies of shiitake. These are fruit bodies, ready to harvest fruit bodies. And just see the white circle on the cap and scars on the cap. Generally, this character is preferred. This is another stand, perfect stage for harvesting. This is another stand. See, we have, I think, more than 40 stands of this shiitake mushroom. This is flower shiitake. It is coming in Delhi INA market from some other countries. The purpose of showing this slide was to simply show that all export quality and more emphasis is given on this grading. Just see the uniform size of the flower shiitake. This is the fresh and dried shiitake. If shiitake cannot be sold fresh, then one can dry it. And presently, there are people are selling the shiitake, fresh shiitake at the rate of rupees 1,000 per kg fresh and rupees 1,700 dry per kg. This is the minimum size for economically viable unit for shiitake cultivation with production facility of 6 cropping rooms with 10 into 14 to 10 size, where 10,000 beds of 2 kg can be accommodated, and cycle to be completed in year 2, and expected yield from 2 cycles is 130 quintals per annum. General farm layout. This is the production. In some rooms it will be in spawn running stage. In some room it will be fruiting stage. In some room it will be in bulb formation stage, like that. Thank you. This was all about shiitake mushroom. Thank you very much, Rafa. Participants, now you can interact with the query. Sir, what is the shelf life of shiitake mushroom? Shelf life is 6 to 7 days. Fresh shiitake mushroom. ओके और इसकी मार्केटिंग मतलब लाइक कितनी इजी है कितनी टफ है मतलब इज इट डेवलप्ड और वेल एस्टेब्लिश्ड मार्केट है इसकी. बहुत से यूनिट ऐसे हैं जो सिंपली इसी मशरूम को ग्रो करते हैं. जैसे मोरनी हिल्स में वो सिंपली शिइटाके ग्रो करता है. शिमला के पास एक यूनिट है टेस्ट एंड हील करके, वो सिंपली शिइटाके और दिस गैनोडर्मा को ग्रो करते हैं. या देहरादून में यूनिट है, उसमें भी सिंपली ये शिइटाके ही कल्टीवेट करते हैं. ओके सर शिइटाके के ऊपर कोई अलग से आप लोग का ट्रेनिंग क्लास है क्या? हम लोग 3 डेज ट्रेनिंग देते हैं, स्पेशल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग. जितने भी ये स्पेशलिटी मशरूम है, फॉर एग्जाम्पल शिइटाके, गैनोडर्मा है, किंग ऑयस्टर है, हेरेशियम है या इनोकी है, तो 3 डेज हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं. तो वेबसाइट पे सर अभी है नहीं वो उसका डिटेल कुछ? वेबसाइट में अभी इसलिए नहीं है क्योंकि इधर ऑनलाइन ट्रेनिंग जब चलेगा तो वेबसाइट में वो ऑफिशियल वाला हम बंद रखते हैं उस वक्त. डॉक्टर साहब, ये जो 3 दिन का आपका ट्रेनिंग है,
और दूसरे दूसरे के लिए 3 महीना है, तो इसमें क्या डिफरेंस आ सकता है? डिफरेंस ये है 3 महीने वाले में बटन मशरूम के पानी कंपोस्ट वो सब कुछ खुद करते हैं जो ट्रेडिंग है, या कोई दूसरे ऑपरेशन है, वाटरिंग करना, हार्वेस्टिंग करना, केसिंग करना, या ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेट, वो सारे एक्टिविटी वो करते हैं क्योंकि लंबा प्रोसेस चलता है। वो क्रॉप देख के जाते हैं। 3 डेज वाले में ये है कि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करा देते हैं, और वो जो क्रॉप लगाएंगे वो आप अपने वहां पर लगाएंगे। तो 3 मंथ्स वाले को वो यहाँ पर लगाते हैं, वो क्रॉप अपना रेज करते हैं और खुद देखते हैं वो। तो ये शिताके और ये दूसरे ऑयस्टर में ऐसी ट्रेनिंग नहीं है जिसमें क्रॉप भी वहीं पे आदमी देख सके? अब इसमें 80 से 90 दिन तो आप स्पंदन के लिए ले लेगा अच्छा शिटाके। अच्छा 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 वो उसके बाद लगभग 6 मंथ तक ये क्रॉप देता रहता है। अच्छा। आप 6 मंथ हार्वेस्ट कर सकते हैं इसको। ओके ओके। और डॉक्टर साहब, ये जो आपने मिनिमम वाला शिताके का जो आपने स्लाइड दिखाया, हाँ जी, हाँ जी। उसका कमर्शियल हमको कल पता चलेगा क्या? कैसे मतलब जो आपने दिखाया मिनिमम साइज ये होना चाहिए 6 रूम का, जो भी शिताके का आपने बताया। नहीं, ये अगर आपका इकोनॉमिकली वायबल यूनिट लगाना है आपने, हाँ जी, तब उसके लिए ये प्रोग्राम शायद बनाया हो कि मिनिमम 6 रूम तो चाहिए आपको, मतलब कंटिन्यूस सप्लाई के लिए। अब जो देहरादून में है उसके पास 12 कमरे हैं। हाँ, शिटाके ही शिटाके है उसमें सारा। ठीक ठीक ठीक। नहीं, तो डॉक्टर साहब मैं पूछना था कि इसका कमर्शियल क्या होता है? मतलब इसमें ये 6 रूम वाला लगाने में कितना पैसा लगता है? यील्ड का कितना? यील्ड तो आपने बता दिया, तो बट पैसे के बाद पैसा वाला जो एंगल है, इसमें पैसे वाला एंगल ये है कि आपको ऑटोक्लेव लेना पड़ेगा, लेमिनर एयर फ्लो लेना पड़ेगा, है ना। और अगर कंट्रोल यूनिट है आपका, आप तो थ्रो कल्टीवेट कर सकते हैं। अगर सीजनल कल्टीवेट करना है आपने, क्योंकि 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए इसको। करेक्ट। तो कंट्रोल यूनिट का इसका टोटल माने कैपिटल और ऑपरेशनल कॉस्ट कितना आता है? वही वो देखना पड़ेगा, मैंने बनाया तो है। हाँ जी, वो अगर आप शेयर करें तब तो हम जो सीखेंगे तो वो डिसीजन लेने में भी तो वो हेल्प करेगा ना। हाँ, अभी आप ये देखो ना, अब कल सवेरे बात करेंगे उसमें जेनोडर्मा का। हाँ जी, तो काफी डिमांड है। किंग ओस्टर, हाँ जी, मोंकी हेड, हाँ जी, इनोकी है। हाँ बिल्कुल। और एक और था ये ब्लैक ईयर मशरूम। करेक्ट। जब आपके पास ऑटोक्लेव होगा या प्लेमिनर एयर फ्लो होगा, इसमें ये जितने भी सारे मशरूम है आप इनको कल्टीवेट कर सकते हैं। और इन पर फर्क ये है कि सबस्ट्रेट भी जैसे आज शिटाके के लिए बनाया, अगर आप शिटाके के पास सीड नहीं है, आपके पास किसी गेनोडर्मा का है, तो गेनोडर्मा यूज कर सकते हैं। सिंपली फर्क ये है कि फ्रूटिंग के लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट सभी की अलग अलग है। ठीक। सबस्ट्रेट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है सभी का। अच्छा अच्छा। तो मिक्स यूज वाला यूनिट भी आदमी बना सकता है? हाँ जी, हाँ जी, मिक्सचर। अगर आप बोले प्योर मैंगो का साडस्ट चाहिए तो वो मिलेगा नहीं। हाँ, नॉर्मली मिक्सचर ही मिलता है। तो हम मैं वो नहीं कह रहा था। मैं आपने जैसे ये 5-6 आपने स्पेशलिटी मशरूम्स आप बता रहे हो ना, ब्लैक ईयर हुआ, इनोकी है, तो खाली 6 रूम मैं कह रहा हूँ 6 रूम शिटाके नहीं लगा के मैं 2-2 रूम लगाऊंगा तब भी इकोनॉमिकल वायरेबल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये मशरूम अभी दिल्ली से आके यहाँ पर वो स्पेशल ट्रेनिंग अटेंड किया, क्योंकि उनका बटन मशरूम का यूनिट है दिल्ली में। करेक्ट। वो कह रहे हैं कि भाई अब आजकल के सभी का सीजनल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो पोस्ट लगा रहे हैं वो भी वापस नहीं मिल रहा है। तो वो स्पेशली शिटाके के लिए आए थे। तो वो लोग शिटाके का काम करेंगे। क्योंकि सीजन में सारे बटन मशरूम आ जाता है मार्केट में, वो रेट नहीं मिलता, वो इसलिए सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि पहले क्लासेस में भी ये बोला कि ग्लोबली आप देखेंगे तो बटन मशरूम और इंडिया में भी 90% बटन मशरूम है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर मैं ये खाली स्पेशलिटी मशरूम में फोकस करना चाहूँ और बटन मशरूम नहीं करना चाहूँ, इनोकी, ऑयस्टर, मिल्की, मैंने केवल, तो उसके लिए भी अगर एक मिक्स यूज यूनिट बैठाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो जैसे पहले क्लास में भी ये बोला गया था कि सरकार केवल 20 टन के यूनिट तक ही सब्सिडी देती है। हाँ जी, हाँ जी।
तो नए हम जो शुरू करने हैं, जिनका हमारे पास कोई बैकग्राउंड नहीं है कल्टीवेशन का या मशरूम बिजनेस का, अगर वहां पर करें तो उसका एक बिजनेस मॉडल अगर आप शेयर करें तो वो हमारे लिए बहुत इंकरेजिंग होगा और हमको डिसीजन लेने में इजी होगा। आप कहाँ से बोल रहे हैं वैसे? हम कैलकाटा से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। ना कलकत्ता के आपके लिए तो ये जैसे मैंने बताया नागालैंड में बहुत बड़े स्केल पर चक्कर। करेक्ट करेक्ट। तो हमारा हमारा हम 2 जगह पर बेस्ड है ईस्टर्न इंडिया में। हमारा घर कलकत्ता और दार्जिलिंग है, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग कलकत्ता। तो इसलिए हम वहाँ हम सोच रहे थे, ये हमारा फोकस भी स्पेशलिटी पे है, बटन पे नहीं है। तो इसके लिए हम फिजिकल ट्रेनिंग भी लेना चाहते थे और एक बिजनेस मॉडल ऐसा जो शुरू करने के लिए, बिकॉज फर्स्ट टाइम करेंगे तो जो हम पर गवर्नमेंट सब्सिडी भी मिल सके, उस रेंज से हम शुरू करना चाहते थे। वैसे ब्लैक ईयर मशरूम की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है ब्लैक ईयर मशरूम। वो वाइल्ड से कलेक्ट करते हैं या पास के म्यांमार से आता है वो। ओके। तो उस मशरूम का भी, ब्लैक ईयर मशरूम का, जैसे कि आप कलकत्ता बेस्ड है, वो आपके लिए तो बहुत बड़ा मार्केट है नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी हाँ जी। उसी प्रेफर करते हैं बोर शिटाके को। फेयर इनफ। आपसे आपने बताया हाँ कि जी मोरबी में शिटाके का एक यूनिट है। हाँ जी हाँ जी। इस यूनिट का नाम क्या है? कि मैं एक्चुअली मोरबी के बहुत पास रहता हूँ, तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं जा सकता हूँ। नाम तो नहीं पता, पर बाजवा साहब है वहाँ पर। अच्छा, बाजवा साहब है। हाँ हाँ। अच्छा, एक और डॉक्टर साहब, एक और बात कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है शिटाके के बारे में, मतलब हाँ जी फ्रॉम 40,000 फीट, मतलब जो मैं एनालिस्ट मेरा है थोड़ा बहुत, वो ये हाँ जी। प्रोड्यूसिंग शिटाके इज इजियर देन बटन मशरूम। एम आई करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। शिटाके में एक एडवांटेज ये है कि जैसे मान लीजिए मुझे अभी शिटाके की जरूरत नहीं है या बिक नहीं रहा मेरा, तो मैं उन ब्लॉक्स को, जो सिंथेटिक ब्लॉक्स जो मैंने बनाए, उनको एज सच रखूंगा, ट्रीटमेंट नहीं दूंगा। जैसे मुझे लगा 12-15 दिन के बाद मुझे शिटाके की जरूरत है, तो मैं आज कोल्ड ट्रीटमेंट दे दूंगा और ठीक 12-15 दिन के बाद आपको फिर फ्रेश शिटाके मिलेगा। यानी कि इसमें प्रोडक्शन अपने हाथ में रहता है। जब आप कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे तब आएगा, जब आप नहीं देंगे तब नहीं आएगा। वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जबकि बटन के केस में ऐसा नहीं है, आपके हाथ में उसका प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन शिटाके आपके कंट्रोल में रहता है। और दूसरा सॉरी मशरूम ये भी देखा गया कि मतलब उसमें जो आपका जो कंपोस्ट बनाने का जो पूरा जो एंड टू एंड है, वो बहुत लंबा और टीडियस प्रोसेस है। और शिटाके में मेरे को लग रहा है कि नहीं है। मैं करेक्ट? बटन मशरूम जो है सबसे डेलिकेट मशरूम है। जब ये पेस्ट और डिजीज का जो लेक्चर होगा तब आप देखें बटन मशरूम कितना ससेप्टिबल मशरूम है। जबकि ये जो स्पेशलिटी मशरूम्स है, वो इनमें पेस्ट और डिजीज की भी प्रॉब्लम बहुत कम रहती है। या अगर आप एयर एक्सचेंज नहीं करते हैं या रूम, कई बार ऐसा होता CO2 बढ़ जाता है या कुछ हो जाए, तो उसमें इन मशरूम्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आप इसको जैसे भी कर सकते हैं, मतलब ये है कि भाई अपने हाथ में रहता है इसका मैनेजमेंट सारा। एक और चीज पूछी थी डॉक्टर साहब आपसे कि ये जो शिटाके हैं, ये इंपोर्ट भी होता है इंडिया में? मैंने कुछ स्टोर्स में देखा है ड्राइड चाइना से आता हुआ है शिटाके। तो एक स्लाइड दिखाया था मैंने, फ्लावर शिटाके, वो दिल्ली में INA मार्केट में आता है किसी बाहर की कंट्री से। ओके। और यहाँ भी लोग, बहुत बड़ा स्कोप है इंडिया में भी, अभी इसका मार्केट फैलता जा रहा है। जैसे मुंबई है, दिल्ली है, वहां पर इसकी काफी डिमांड है, बेंगलोर है। वो कुछ पार्टी ऐसी है, वो कहते हैं जितने मर्जी प्रोड्यूस हो, आप वो परचेज करने के लिए तैयार है। ये जो शिटाके का आपने बताया था, ये कोई स्पेसिफिक फूड है जिसमें यूज होता है? थोड़ा सा अलग दिखा है। और ये कलिनरी मेडिसिनल मशरूम के कैटेगरी में आता है। इसमें कुछ जैसे करते लोग कैप्सूल बनाएंगे शिटाके और गैनोडर्मा का पाउडर बना के, या आप इसको कुक करके भी खा सकते हैं। मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रहता है इसमें। हाँ। सर एक इसका कोल्ड ट्रीटमेंट से रिलेटेड सवाल है कि नॉर्मली कितने डिग्री पानी में लॉग्स को डीप करना रहता है? पानी किसी टब में आइस डालना पड़ता है। आइस डाल के
टेम्परेचर 6 से 8 डिग्री या 10 डिग्री तक आ जाए तो उसके बाद उस ब्लॉक्स को आप उसमें 10 से 15 मिनट के लिए डीप कर देंगे, फिर उसके बाद फ्रूटिंग के लिए रख देंगे। थैंक यू। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपकी 3 दिन की ट्रेनिंग है, हाँ जी। इसके बाद मैंने जो भी सोलन के आसपास कोई अगर शिटाके, जैसे आपने कहा देहरादून में है कोई, हाँ तो वहां पर ट्रेनिंग इंटर्न ट्रेनिंग कर सकते हैं क्या हम लोग? वो तो जी उनका अपना हिसाब है, उनका अपना सिस्टम है, अगर वो परमिट करते हैं। नहीं, मैं कह रहा अगर आप बीएमआर के साथ कोई जुड़ा हुआ है कोई यूनिट, तो ये उसमें वो आप लोग हेल्प कर सकते हैं। नहीं, वो लोग भी तो यहीं से ट्रेनिंग करके गए हुए हैं जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ। हाँ जी, वही कह रहा हूँ। तो वहां पर अगर हमको ट्रेनिंग के लिए आप लोग रेकमेंड कर सकते हैं? बिल्कुल। आपने एक वेबसाइट देता हूँ मैं आपको, दून ईगल करके, हाँ, देहरादून में है। DOONEAGLE, है ना? हाँ, दून ईगल। हाँ, ये देहरादून में गैनोडर्मा का बहुत बड़ा यूनिट है इनका, और कैप्सूल्स वगैरह प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये लोग भी ट्रेनिंग देते हैं, इनके वेबसाइट में परफॉर्मेंस वगैरह, ये इनका रहने का भी, खाने पीने का भी सब इंक्लूडिंग होता है। अच्छा, तो ये शिटाके भी करते हैं? सिटाके भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, इनको सब पता है। तो इसका मतलब आपके पास पहले 3 दिन की ट्रेनिंग लेकर हम वहां जा सकते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? हाँ, एक बार आप उनके वेबसाइट पे भी चेक कर लेना, वो उन्होंने डिटेल में दे रखा हो। सरदार जी हैं। हाँ जी, क्या स्पेलिंग, क्या नाम का स्पेलिंग क्या होगा? सरदार जी का नहीं, ये दून ईगल आपने कुछ बोला ना? दून ईगल, DOONEAGLE ईगल। ईगल ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप। और एक और यूनिट है शिमला के पास, टेस्ट एंड हील। कौन सा? टेस्ट एंड हील। अच्छा, वो लोग सिंपली गैनोडर्मा और सिटाके ग्रो करते हैं, बाकी कोई मशरूम नहीं करते। ओके। हाँ जी। सर नियर फ्यूचर में ये सिटाके की ट्रेनिंग होगी क्या ऑन कैंपस में? बिल्कुल होगी। आप ऑनलाइन बंद कर रहे हैं, शायद फिजिकल ट्रेनिंग ही हो ऑफलाइन मोड में, क्योंकि ऑनलाइन में आप प्रैक्टिकल कैसे करना जी करो, जी, practical देख ही नहीं पाते हैं सर जी। नहीं, उसी में डॉक्टर साहब हम तो जून से फॉलो अप कर रहे थे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, ऑफलाइन के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो अब मैडम ने बोला है कि शायद जनवरी से आप लोग चालू करने वाले हो। हाँ, कुछ ऐसा चली थी बात मीटिंग में, शायद जनवरी से शुरू हो जाएगा ऑफलाइन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और, जैसे आपने बोला ये फ्रेश शिटाके 1000 रुपए किलो बिकता है, ड्राई शिटाके 1700 रुपए किलो बिकता है। हाँ जी, हाँ जी। ये तो मार्केट का आपने बोला ना, रिटेल प्राइस। हाँ जी, हाँ जी। तो और अगर हम बटन मशरूम पकड़ लें तो वो करीब 200 रुपए किलो बिकता है या 250 रुपए किलो बिकता है। हाँ जी, हाँ जी। अब कॉस्ट और उसमें क्या कहते हैं, जैसे और बटन मशरूम अगर हम मंडी में बेचने जाएं तो 100 से 120 रुपए किलो तक बिकता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये शिटाके का मंडी प्राइस क्या आता है? और ये कॉस्ट और सेल प्राइस में इसका मतलब है शिटाके स्पेशलिटी का मार्जिन भी बहुत ऊंचा होगा। देखिए, एक जो ब्लॉक है सिटाके का, ब्लॉक बनाने में ये समझ लो स्पान रन कंप्लीट करके 100 रुपए का बेचते हैं हम लोग। तो अच्छा। उसमें एक ब्लॉक में से लगभग 800-900 ग्राम सिटाके आ जाता है। ठीक है। तो सिटाके फ्रेश मतलब 1000 रुपये केजी जा रहा है, तो आपका ब्लॉक तो वैसे ही फ्री हो जाता है उसमें। करेक्ट। हाँ जी। और इसमें ये स्पेशली मशरूम ऐसे जैसे शिटाके है, आप लॉइंस मैंने है, तो एक बार स्पानिंग करेंगे, ये लगभग 6 मंथ तक आपको क्रॉप देते रहेंगे। करेक्ट करेक्ट। जबकि पटन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिटाके में तो बिल्कुल अपने हाथ में रहता है, जब आपको जरूरत होगी तब सिटाके ले सकते हैं, अगर जरूरत नहीं है तो ब्लॉक्स को एज सच छोड़ देते हैं। हाँ, और नहीं, और दूसरा आपने जो हम देख रहे हैं मार्केट में, एटलीस्ट बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता में देख रहे हैं कि ड्राई शिटाके तो राउंड द ईयर चलता है, तो शिटाके में वो एडवांटेज ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। अमेजोन में देखेंगे आप 50 ग्राम 200 रुपए का देते हैं अमेजोन में। ये अमेजोन में नहीं डॉक्टर साहब, ये नेचर फ्रेश जो हमारे कलकत्ता, बैंगलोर और बॉम्बे में नेचर फ्रेश डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहां पर 2500 रुपए किलो के नीचे कोई शिटाके नहीं है।
अच्छा, जो लायंस में ना उसकी कॉस्ट मैं देख रहा था 14,000 रुपीज के जी जाता है ड्राई, 14 से 40,000। स्पेशलिटी मशरूम में ही वैल्यू दिख रहा है पूरा। सर एक हाँ जी, हाँ जी। सर जो अभी आपने शायद बताया कि आप लोग स्पॉन रन जो लॉग्स हैं सिंथेटिक वो सेल भी करते हैं क्या डिपार्टमेंट से? पहले से बेचते थे हम लोग, जी जी। तो स्पांडन उसका लॉग्स बेचते थे 100 रुपये पर लॉग के हिसाब से, लेकिन कुछ प्राइवेट ग्रोअर्स ऐसे हैं वो भी सप्लाई करते हैं। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट सर मिल सकता है क्या? आपने जैसे बोला 100 रुपए का आप लोग देते थे, वो लोग भी उसी आसपास में ही देते हैं या? उससे थोड़ा सा, ये तो सरकारी रेट है 100 रुपये, वो हाँ जी, 150 हाँ, दे देते हैं। ओके ओके। हाँ जी, बट क्वालिटी उनकी टेस्टेड क्वालिटी होती है। स्पान यहीं से ले जाते हैं वो डीएमआर से। अच्छा, जैसा मैंने बताया था आपको, जो शिकागे के बहुत सारे स्ट्रेन है, एक मैंने बताया था 327 हाँ, जो कमर्शियल यूनिट्स जो काम कर रहे हैं वो कमर्शियली उसी को स्ट्रेन को यूज कर रहे हैं, या 356, ओके क्योंकि उसमें फ्रूट बॉडी की क्वालिटी अच्छी रहती है। अगर आप ड्राई भी करेंगे तो फ्रूट बॉडी थिक रहता है, ओके तो क्वालिटी उसकी अच्छी मेंटेन रहती है। ओके। यानी तो और ये जो फ्लावर शिकागे जो अभी इंपोर्ट होके आ रहा है, इसका स्ट्रेन डीएमआर ने निकाला है क्या? मैंने ही डाला था, ट्रायल डाला था हाँ जी, फ्लावर शिटाके का, लेकिन कुछ बीच में गड़बड़ हो गया उसका टेम्परेचर वगैरह का, तो अभी ओके। करना है उसका, मैंने दोबारा तो ट्राई। तो मतलब इस पे हम काम कर सकते हैं, है ना डॉक्टर साहब? इस पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। मैंने पूछना था कि जो लायंस में मशरूम है हाँ जी। उसकी प्राइमरी मार्केट इंडिया है या नहीं है, या एक्सपोर्ट हो सकता है उसका? नहीं नहीं, आप अभी देखेंगे, आप बिहार में बहुत बड़े स्केल पर चल पड़ा है ये इसका काम, डिमांड भी ज़्यादा है। देहरादून में एक लड़का है निशांत, वो उसने भी इसका यूनिट शुरू कर रखा है लॉन्च देने का। तो भी ये गुड़गांव नोएडा में भी एक यूनिट है, वो सिंपली ये आपका ये लॉन्च में दूसरा एग्रोसाई भी ऐसे ऐसे मशरूम का काम करते हैं। वो मतलब जो थोड़ा एक्सोटिक टाइप लगे, बटन मशरूम तो कॉमन है सभी जानते हैं, लेकिन जो कुछ एक्सोटिक टाइप के लगे, जैसे इनोकी है, हाँ जी, हाँ जी। गोल्डन नीडल है उसको बोलते हैं, तो वो कुछ लोग उन पे काम करते हैं। तो अमृतसर के पास यूनिट है, वो भी यही स्पेशलिटी मशरूम भी ग्रो करते हैं। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था कि जो इनकी डिमांड है वो लोकल डिमांड फुलफिल कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? लोकल भी, एक्सपोर्ट तो अभी कोई नहीं कर रहा है। लोकली इतना प्रोडक्शन है ही नहीं कि वो एक्सपोर्ट के लिए जा सके। हाँ जी, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका भी देते हैं 7 दिन नहीं 3 दिन का ट्रेनिंग कोर्डिसेप्स कल्टीवेशन के ऊपर, मैं ही देता हूँ। तो उसमें जाने का तभी फायदा होगा जब आपके पास मार्केट एस्टेब्लिश्ड हो, क्योंकि इसकी मार्केट अभी नहीं है। जब किसकी आप डॉक्टर साहब, किसकी मार्केट नहीं है? मतलब जब आप कॉन्सेप्ट की बात कर हाँ जी, आप कीड़ा जड़ी की बात कर रहे हो ना? हाँ जी, कॉर्डिसेप्स? वही वही वही। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। कल बताऊंगा मैं इस लेक्चर में इसके, जो हम लोग यहाँ पर कोर्डिसेप्स कल्टीवेशन लैब का फोटो दिखाऊंगा, हम लोग जो करते हैं। डन डॉक्टर साहब। वो तो सबसे महंगा मशरूम है ना एवर इन द वर्ल्ड? हम लोग डीएमआर में 1 लाख रुपए केजी बेचते हैं, और जबकि बाहर में ये 3 लाख रुपए केजी है, लेकिन मार्केट इसकी बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा जी। हाँ जी, क्योंकि मैं पढ़ रहा था इसकी जो कल्टीवेशन है इतनी मुश्किल सी होती है जनरली वाइल्ड। कुछ कोई मुश्किल नहीं है इसकी। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। तो डॉक्टर अत्री